नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वर्क। जब हम किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, इट मींस अनबैलेंस फोर्स, जब हम उस पर अप्लाई करते हैं तो एक बॉडी स्टेशनरी कंडीशन में है तो वो मूव करती है, मूव करेगी तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। देन वी कैन कैलकुलेट द वर्क when we applied the force. If the body is displaced by the distance d, then work done will be equal to, body is displaced uh, with a distance d in the direction of force, then work done will be equal to the product of force and displacement. यदि बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है तो वर्क डन हम डायरेक्ट उसके मल्टीप्लिकेशन से निकालते हैं। जैसे हम एक यहाँ पर बॉडी कंसीडर करते हैं, एक फोर्स हमने अप्लाई किया इधर F and body is displaced by a distance d, then work done is given by the product of force and displacement. So when we applied a force F on the body and body is displaced by a distance d, then by a distance d in the direction of force, then work done is the product of force and displacement. The unit of work is joule in SI system or MKS, and erg in CGS. 1 joule equal to 10⁻⁷। इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं भाई, W work done is given by force into displacement, न्यूटन into मीटर, यूनिट में निकालें तो इन SI सिस्टम, और डाइन into सेंटीमीटर इन CGS सिस्टम। 1 न्यूटन मीटर equal to 10⁵ time into 100 centimeter, that is 10⁷ dyne centimeter, that is erg. 1 Newton meter means 1 joule. Some conditions are there. We know that work done is F and D. If F is equal to 0, then work done becomes 0. Similarly, if D is equal to 0, then work done again will be 0. Third condition is, if the force is perpendicular to the displacement, force perpendicular to the displacement, work done becomes 0. इसके और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। In any circular motion, the centripetal force always remains towards the center and displacement is given by the tangent. The angle between force and displacement is 90 degree. So work done in one revolution, or we can say each and every revolution remains 0. इसके जनरल एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि when electron revolves around the nucleus, work done remains 0. Earth revolves around the sun, in this case also work done remains 0. तो ये जो सर्कुलर मोशन होते हैं, सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के, and both are perpendicular to each other, then work done remains 0. Electron revolve around the nucleus, work done is 0.
Earth revolves around the sun. Work done. MS. Work done against gravity. When a body is placed on the surface of the ground and it is displaced up to h height, this is surface of the ground, and this body is displaced up to h height. So work done by external force, W will be equal to force into displacement, F into D, and F will be equal to mg, which is equal to the weight of the body, and D will be equal to h. Here F is equal to mg, weight of the body, and D is h. So work done will be equal to mgh, and this work done remains positive because work done is in the direction of applied force. When we applied the force in the direction of displacement, work remains positive. In same case, work done due to gravity is negative because displacement is in upward direction and gravitational force always remains in downward direction. Displacement in upward direction and gravitational force mg, W is equal to mg, always downward direction, then work done will be negative, minus mg. Question: a body of mass 2 kg displaced in upward direction by 10 meter. Find the work done due to gravity. Solution: you know that W is equal to Fd. Here F will be equal to mg and D is h. Recording M is 2 kg and G is taken as 9.8 and H is 10. Then work done will be equal to 196 joule. Come to the next topic, energy. The capacity of doing work is called energy. इट मीन्स जो वर्क करने की कैपेसिटी है, इट मीन्स वर्क ही एनर्जी है एक तरीके से, क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति में एनर्जी नहीं होगी तो वो वर्क नहीं कर पाता, तो वर्क करने की कैपेसिटी को ही हम एनर्जी बोलते हैं। तो वैसे हम दोनों के लिए कुछ डिफरेंट यूनिट्स का यूज करते हैं, पर ये कॉमन भी हो सकती है। एनर्जी की यूनिट को हम जूल भी बोल सकते हैं, अर्ग भी बोल सकते हैं। तो यूनिट ऑफ एनर्जी जूल। इसकी जो कमर्शियल यूनिट है वो किलोवाट आवर में हम लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो मेजरमेंट होता है उसको हम किलोवाट आवर में कंसीडर करते हैं। तो kWh is also a unit of energy and 1 kWh kilowatt hour will be equal to 1000 watt hour equal to 1000 watt and 3600 seconds equal to 360050 watt into second, and watt into second is called joule.
3.6 into 10 raised to the power 6 joule. 1 kWh is 3.6 times power 6 joule. Electron volt is also the unit of energy. Fourth unit is electron volt. 1 electron volt equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 joule. The different forms of energy. First is heat energy, light energy. हीट एनर्जी में हम ले सकते हैं कोई भी जो बर्निंग मटेरियल होता है, जैसे कॉल है, वुड है, गैस, जिससे कि हम हीट जनरेट करते हैं, तो वो हीट एनर्जी उससे हम कंसीडर करेंगे। सेकंड, लाइट एनर्जी में जैसे लाइट एनर्जी का जो सोर्स है वो एक नेचुरल सोर्स के रूप में हम सन को ही लेते हैं, क्योंकि स्टार्स की लाइट को हम उतना यूज नहीं कर पाते, अर्थ तक वो बहुत ही कम क्वांटिटी में पहुंचती है। तो सन इज द सोर्स ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। एंड थर्ड इज साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी वाइब्रेशन के थ्रू जनरेट होती है। जैसे कोई भी ट्यूनिंग फॉर्क को हम वाइब्रेट करते हैं तो उसमें से साउंड जनरेट होती है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जेक्ट में जब वाइब्रेशन होते हैं तभी साउंड का जनरेशन होता है। तो जैसे हम बोलें कि विशिल, फ्लूट, सितार, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो साउंड जनरेट करते हैं विद द वाइब्रेशन, ड्यू टू द वाइब्रेशन। मैग्नेटिक एनर्जी। Moving charge creates magnetic field around the charge, around the moving charge. तो उस मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होता है तो उसमें मैग्नेटिक एनर्जी होती है, मतलब उसमें हम ये बोलें कि किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की या रिपल करने की उसमें पावर होती है। तो उसके थ्रू जो एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तो हम बहुत सारे यूजेस इन डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि जो भी वर्क डन, कई सारे वर्क उससे करते हैं। जैसे हम बोले कि घर में वॉशिंग मशीन से हम यूज करते हैं उसका एनर्जी को, और घर में जो लाइट हम ट्यूब लाइट, बल्ब वगैरह जलाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट है वो कमर्शियल यूनिट किलोवाट पर आवर आपको अभी बताया था, 3.6 10⁻⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू द 3.6 into 10⁻⁶ जूल। और नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के बारे में हम बता सकते हैं कि जैसे फ्यूल जितने भी होते हैं हमारे, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, जब ये बर्न होते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है इनमें, और उस इनके अंदर जो एनर्जी इंटैक्टेड है उस एनर्जी का हम यूटिलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट इट इज सोलर एनर्जी। एक्चुअली सन की जो हीट एनर्जी होती है, जो रेडिएशन सन से हमको मिलते हैं, वो सारे रेडिएशन सोलर एनर्जी में हम कंसिडर करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी एंड लास्ट मैकेनिकल एनर्जी। Mechanical energy is divided into two parts. One is potential energy and another is kinetic energy. Kinetic energy of the body. Kinetic energy also equal to the work done. You know that work done equal to the force into displacement, and force equal to mass into acceleration. Displacement को s भी consider कर सकते हैं, d is equal to s. According to the third equation of motion, v square is equal to u square plus 2as implies as equal to v square minus u square by 2. Put the value of as
W is equal to the value of A is in equation number first. W is equal to M into V square minus U square by 2, that is half mv square minus half mu square. Means kinetic energy in different two stages, different 2 points. So difference in kinetic energy will be equal to the work done, and if initial velocity u equal to 0, then work done will be equal to half mv square, and it is known as kinetic energy of the body. So work done equal to the kinetic energy K equal to half mv square. तो काइनेटिक एनर्जी अभी आपको बताया कि ये वर्क डन के बराबर ही होती है और इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी ड्यू टू द मोशन, ड्यू टू या एनर्जी इन द मूविंग कंडीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द काइनेटिक। डेफिनेशन हम इसका लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ द बॉडी due to its motion is called kinetic energy. Kinetic energy of the body depends only on its speed, but not on the direction of the moving body. ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, डायरेक्शन कोई सा भी हो सकता है। इसकी स्पीड ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, बिकॉज मास इज कांस्टेंट। वेलोसिटी यदि बहुत ज़्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज उसकी वेलोसिटी के स्क्वायर से हमको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। नाउ एक और पॉइंट हम इसमें देख सकते हैं कि बिकॉज की मास तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा, और वेलोसिटी का स्क्वायर है तो वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में होगी। हम राइट हैंड साइड को यदि पॉजिटिव मान लें और लेफ्ट हैंड साइड में यदि वेलोसिटी होगी तो भी माइनस वेलोसिटी का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से वापस हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाती है। तो इट इज ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। Kinetic energy is also represented in terms of momentum. For example, kinetic energy in terms of momentum. We know that K is equal to half mv square. यदि हम m से इसको मल्टीप्लाई करें ऊपर और नीचे तो m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m बनेगा। m square v square, because mv is p, so here m square v square is p square by 2m. P square is 2mk and p will be equal to 2mk. Next point is potential energy. The energy possessed by a body due to its position or configuration is called potential energy. Energy possessed by a body due to its position or configuration is called potential energy. इसके कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। जैसे किसी भी बॉडी को हमने लिफ्ट किया h हाइट तक ऊपर ले गए, एग्जांपल if body is lying on the surface of the earth and it is displaced up to h height, then potential energy at h height
will be equal to the work done is equal to force into displacement. Force is equal to mg, displacement is h. Potential energy at h height will be mgh. जैसे किसी स्पंज को हम दबा करके छोड़ते हैं, दबाते हैं, तो उसमें जो हम वर्क करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जो उसका जो डिशेप होता है, वो जो डिफॉर्मेशन उसमें आती है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उसमें एक्यूमुलेट होती है। और जैसे ही हम उसको रिलीज करते हैं, आउटर फोर्स को जैसे रिलीज करते हैं, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आती है। तो जो भी मतलब किसी भी बॉडी के शेप और साइज को चेंज करती है या उसकी पोजीशन को चेंज करता है जो वर्क डन, उस वर्क के इक्वल पोटेंशियल एनर्जी उसमें इंटैक्ट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। It means power equal to the work done upon time. रेट फाइंड करने के लिए हम टाइम से डिवाइड करते हैं, एंड P इक्वल टू W बाई टी। मोमेंटम को भी P से डिनोट करते हैं, पावर को भी P से डिनोट करते हैं। हमको इसमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जब पावर यूज कर रहे हैं तो वर्क और टाइम के रिलेशन में होता है, जब मोमेंटम यूज करते हैं तो मास इनटू वेलोसिटी होती है, तो वहां पर थोड़ा हमको उसको ध्यान रखना होगा। एंड वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टी, एंड डिस्प्लेसमेंट बाय टी इज वेलोसिटी, एंड P is equal to F into V because S by T equal to V. The unit of power is watt. Joule per second, it is equal to watt, and watt is denoted by only capital W. Symbol of watt is W only. 1 kilowatt equal to 10⁻³ watt. मेगा और गीगा में भी इसको हम यूज करते हैं। 1 megawatt 10⁻⁶. Similarly, 1 gigawatt is equal to 10⁹ watt. कमर्शियल यूनिट जो पावर की है उसको हम हॉर्स पावर में यूज करते हैं। ये ब्रिटिश सिस्टम से हॉर्स पावर लिया है। देन 1 horse power 746 watt. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा, कि हम एनर्जी को इन वन फॉर्म टू अनदर कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक्चुअली जहाँ भी एनर्जी इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन होता है, जैसे हम हाइड्रोलिक पावर स्टेशन ले लें या थर्मल पावर स्टेशन ले लें या हमारा जो एटॉमिक पावर स्टेशन है RAPP, वहाँ पर हम मैकेनिकल वर्क करके और उसको टरबाइन को घुमाते हैं। मैकेनिकल वर्क करके टरबाइन को घुमाते हैं, और जब टरबाइन घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब उसको कॉइल को घुमाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एक जनरेटर का सिस्टम होता है। तो मैकेनिकल टरबाइन को घुमाने के लिए हमको मैकेनिकल वर्क किया जाता है। जैसे हाइड्रोलिक पावर स्टेशन में जब किसी डैम पर हम पानी को रोकते हैं तो पानी की हाइट बढ़ जाती है, मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और जब उस हाइट से हम टरबाइन के फैंस के ऊपर पानी को गिराते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से जो फैन रोटेट होते हैं, और फैन रोटेट होने से मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल घूमती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। जो मोटर होती है हमारी, जैसे कोई भी हमको कोई बेल्ट, वो हम अपनी चक्की ले सकते हैं जिसपे कि हम बेल्ट को चलाते हैं,
तो मोटर से हम उसके रोल्स को जो जो उसके वो व्हील्स होते हैं उनको हम घुमाते हैं एक बेल्ट से, और मोटर से व्हील घुमाते हैं और व्हील से फिर उसके चक्की के जो दो पत्थर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर घूमते हैं। उससे हम मैकेनिकल वर्क के रूप में आउटपुट लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कई सारे, जैसे हम वॉशिंग मशीन ले लें या कोई वाटर पंप ले लें, तो ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम में आते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, जैसे हम ले लें कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, गीजर, ये सभी मतलब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द लाइट एनर्जी। ये आप सभी को पता है कि हम जितना भी लाइट का यूज करते हैं नाइट में, हमारे जितने भी बल्ब, ट्यूबलाइट, सर्च लाइट, जितने भी हम यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल बेल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हम डे टू डे प्रैक्टिस में इस चीज को नहीं देखते हैं कि लाइट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे यूज करते हैं, बट कई जगह पर आजकल फोटो सेल्स का यूज किया जाता है। जो फोटो डायोड होते हैं, स्मॉल एक सिलिकॉन चिप के रूप में बने हुए फोटो सेल्स होते हैं, उन बहुत सारे सेल्स को एक पैनल पे लगा करके, और जैसे जब उनके ऊपर लाइट गिरती है तो वहां पर एक रिएक्शन होती है एक तरीके से कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के थ्रू जो लाइट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो स्टीम इंजन होता है, तो स्टीम इंजन में जैसे कॉल को बर्न करते हैं तो जो उसकी हीट होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे पहले स्टीम इंजन थे ट्रेन के, तो स्टीम इंजन को हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते थे और ट्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, जब इनका ये जो बर्न होते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है, एंड दैट केमिकल एनर्जी which is injected in the petrol and diesel converts into the mechanical energy. Next, mechanical energy into heat energy. जैसे ये जो बर्निंग का सिस्टम है, जैसे फ्यूल्स का मैंने आपको बताया, वुड, कॉल और जितने भी अपने पेट्रोल, डीजल, वो उस सब में एक्चुअली पहले तो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में क्रिएट होती है। जैसे मान लो पेट्रोल और डीजल जब बर्न होता है इनसाइड द व्हीकल, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है पहले वो, और हीट एनर्जी को फिर हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इंटर रिलेशनशिप है इनकी कि एक एनर्जी को हम दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं। केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे जो इलेक्ट्रिक सेल्स वगैरह होते हैं कि हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स, तो उसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हमने अभी पढ़े कि हाउ टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर, एंड ऑल द एनर्जी आर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। तो जो भी एनर्जी की फॉर्म्स है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। Now this chapter is over.